کرنتھیوں کے نام پولس رسول کا خط، پہلا خط، اور اس کا 15واں باب، پولس رسول کا خط کرنتھیوں کے نام، اس کا 15واں باب اور اس کی 10ویں آیت کا ایک پارٹ میں پڑھوں گا۔ لیکن جو کچھ ہوں خدا کے فضل سے ہوں، اور اس کا فضل جو مجھ پر ہوا وہ بے فائدہ نہیں، بلکہ میں نے ان سب سے زیادہ محبت کی، اور یہ میری طرف سے نہیں ہوئی بلکہ خدا کے فضل سے جو مجھ پر تھا۔ خدا ان کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی خاص پر تو سب کہیں آمین۔ آج خدا کا بندہ پولس رسول جو ہے کرنتھیوں کے نام خط لکھتے ہوئے اس کے 15ویں باب اور اس کی 10ویں آیت کے اندر وہ فضل کی بات کرتا ہے، وہ گریس کی بات کرتا ہے کہ خدا کی طرف سے جو میرے اوپر گریس ہے، فضل ہے، کہتے ہیں میں سب کچھ اس کے فضل سے، فضل خدا کی وہ قدرت ہے، فضل خدا کی وہ الہی قدرت ہے، جس چیز کے آپ حقدار نہیں ہو، جس چیز کے آپ حقدار نہیں اس چیز کو لینے کے لیے، لیکن خدا کی طرف سے آپ اس جگہ پر جا بیٹھتے ہو، اسے فضل کہتے ہیں۔ کیا اسے کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں اسے؟ جس چیز کے آپ حقدار نہیں ہو۔ ایک بندہ، میں مثال دینے لگا، جس کی اس نے ایم اے کیا ہوا ہے اور آپ نے کیا ہوا ہے 5ویں پرائمری کی ہوئی ہے، پاس ہو، اور ایک طرف ایم اے پاس ہے اور جاب کھڑی ہے، جاب کے لیے اپلائی کیا دونوں نے، لیکن ایم اے والا ریجیکٹ ہو گیا ہے اور 5 پرائمری والے کو انہوں نے اس جگہ پر رکھ لیا ہے۔ یہ ہے فضل۔ آپ کہتے ہو بادشاہ آپ نے دعا کی، ایک طرف ایم اے بہن کھڑی تھی اور ایک طرف میں 5ویں کلاس پاس، اس کو ریجیکٹ کر دیا گیا اور مجھے جاب مل گئی ہے، بھائی صاحب میں گواہی دے دی۔ یہ فضل ہے، جس چیز کے آپ حقدار نہیں وہ چیز آپ کو مل جائے، آپ پر فضل ہوا ہے۔ اور یہی بات پولس رسول کرنتھیوں کی کلیسیا کے اندر خط لکھتے ہوئے وہ کہتا ہے، اے میرے بیٹو، اے میری بیٹیوں، کرنتھیوں کی کلیسیا کے اندر وہ اپنی گواہی دیتا ہے، کہتا ہے مجھ پر فضل ہوا ہے۔ 12 شاگرد یسوع نے چنے، لیکن میں دورے دینے کی پیدائش ہوں، میں دمشق کی راہ پر بلایا گیا، میں تو کلیسیا کو ستانے والا، مارنے والا، انہیں قید کرنے والا تھا، لیکن یہ خدا کا فضل ہوا ہے کہ اس نے مجھے چنا ہے، اس نے مجھے بلایا۔ کہتا ہے میں دورے دنوں کی پیدائش، اور کہتا ہے مجھ پر فضل ہوا ہے، مجھ سے بڑے، مجھ سے زیادہ لوگ اسرائیل کے اندر پڑھے لکھے، اعلیٰ عہدوں پر فائز، حکمت سے مامور، لیکن مجھ پر فضل ہوا ہے کہ وہ چیز مجھے ملی ہے، مجھے خدا کے حضور کھڑے ہونے کا شرف ملا ہے، مجھے خدا کے حضور بیٹھنے کا شرف ملا ہے۔
اور مجھے چنا گیا۔ حنانیہ نے میرے سر کے اوپر ہاتھ رکھے، حنانیہ نے میرے سر کے اوپر ہاتھ رکھے اور میری آنکھیں کھل گئی، میری آنکھیں کھل گئی۔ آج لوگوں کی آنکھیں ہی نہیں کھلتی، روحانی آنکھیں ہی نہیں کھلتی۔ کہتا پھر میں جب میری روحانی آنکھیں کھل گئی تو میں اپنے نشان کی طرف دوڑے ہوئے جاتا ہوں، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ مجھ پر فضل ہوا ہے۔ اور وہ کہاں سے اٹھاتا ہے یہ سب چیزیں؟ وہ بائبل کے اندر خدا کے بندہ داؤد پر غور جب کرتا ہے، داؤد بھیڑ بکریاں چرانے والا شخص، داؤد خدا کا بیٹا، یسی کے 7 بیٹے ہیں، پہلے کا نام الیاب ہے، دوسرے کا نام امیراب ہے، تیسرے کا نام سما ہے، یہ اعلیٰ عہدوں پر فائر ہے۔ اور ایک دن خدا نے سیموئیل کو کہا اٹھ اپنی کپی میں تیل ڈال، مسا کا تیل، اور یسی کے گھر کے اندر جا اور وہاں پر قربانی کر، اور میں تجھے بتاؤں گا کہ اسرائیل کا بادشاہ کون ہوگا۔ جب یسی نے اپنے 7 بیٹوں کو دعوت دی لیکن داؤد کو نہیں بلایا، پہلا بیٹا اس کے حضور سے گزرا، دوسرا گزرا، تیسرا۔ سیموئیل پہلے بیٹے الیاب کو دیکھ کر کہنے لگا خداوند اتنا لمبا چوڑا جوان، یہی اسرائیل کا خدا نے کہا سیموئیل تو جسم پر نگاہ کرتا ہے، تو خد و خال پر، اور تو جس ظاہری چیزوں کو دیکھ رہا ہے، یہ نہیں، دوسرا بھی نہیں، تیسرا۔ اس نے کہا تیرے 7 بیٹوں میں؟ اس نے کہا ایک ہے اور وہ بھیڑ بکری چرا رہا داؤد۔ داؤد کی زندگی میں شکر گزاری کا رویہ تھا، وہ ہر وقت ورشپ کرتا تھا، لیکن جب ورشپ کرنے کے بعد وہ شکر گزاری کا اس کی زندگی کے اندر رویہ تھا۔ آج میں آپ کو بتاؤں لوگ چرچ بھی آتے ہیں، ہدیہ بھی دیتے ہیں، دعوت بھی دیتے ہیں، لیکن ان کی زندگی کے اندر شکر گزاری کا رویہ نہیں ہے۔ شکر گزاری کا رویہ پولس کرنتھس کی کلیسیا کے اندر کہتا ہے میں نے سیکھا ہے، اور اس نے داؤد سے سیکھا کس طرح داؤد شکر گزاری کرتا ہے، کس طرح اس کی زندگی میں شکر گزاری کا رویہ ہے۔ وہ بھیڑ بکریاں چراتا ہے، وہ ورشپ کرتا ہے، لیکن ساتھ ساتھ خدا کے حضور شکر گزاری کا رویہ اس کی زندگی میں، وہ خدا کو کہتا ہے اے میری جان تو خداوند کو مبارک ہے، اور جو کچھ مجھ میں ہے تو اس کے قدوس نام کو مبارک ہے۔ یہ دیکھیں وہ شکر گزاری کہاں پر کر رہا ہے، بھیڑ بکریاں چراتے ہوئے خدا کی شکر گزاری کرتا ہے، اور وہ کہاں پر؟ وہ کھیتوں کے اندر، پہاڑوں کے اندر، بیابانوں کے اندر اپنا مذبح کے اوپر کہتا ہے اے خداوند تو بھلا ہے، تیری شفقت ابدی ہے، تیری وفاداری پشت پشت رہتی ہے۔ خدا اس رویے کو دیکھتا ہے، اس کے ورشپ کو دیکھتا ہے، اور خدا نے اسے کھورے سے اٹھایا۔ اس نے بڑبڑانے کا رویہ نہیں تھا، اس کی زندگی کے اندر بڑبڑانے کی اسپرٹ نہیں تھی، اس کی زندگی کے اندر شکر گزاری کی اسپرٹ تھی۔ اور کلام کے اندر لکھا ہے داؤد شکر گزاری کا رویہ اس کی لائف میں تھا، اور اسی لیے خدا نے سیموئیل کو کہا اٹھ یسی کے گھر جا، وہاں پر ایک شخص تجھے ملے گا، وہ شکر گزاری کا ہر وقت میرے ضرور شکر گزاری کرتا رہتا ہے، اور میں اس کی شکر گزاریوں کی دعاؤں کے اوپر کان لگاتا ہوں، اور میں ہر وقت اس کی شکر گزاریوں کی دعاؤں کو سنتا ہوں۔ اور کلام خدا کے اندر لکھا ہے کہ خدا کا بندہ داؤد باہر بھیڑ بکریاں چروا رہا ہے، اور لیکن خدا اس کے لیے ڈیوائن ہیلپر کھڑ کر رہ جا۔ آج ہمارے بچوں کی لائف میں شکر گزاری کا رویہ نہیں ہے، آج ہماری بچوں میں، بیٹیوں بیٹوں میں شکر گزاری کا رویہ نہیں، اور وہ ترقی کرنا
बस्तियों को वही लोग छूते हैं जो शुक्रगुजारी का रवैया दाऊद की तरह बनाते हैं। आज मैं आपको बताऊं, आपने दाऊद को सुना है सिर्फ गीत गाते, लेकिन मैंने उसे देखा है शुक्रगुजारी का रवैया अपनाते हुए। और कलाम खुदा के अंदर लिखा है शुक्रगुजारी करने वालों का जिक्र आसमान पर होता है। और ये बंदा, खुदा का बंदा पौलुस रसूल कहता है मैं इस फजल को जान चुका हूं। कहां पर भेड़ बकरियां चराने वाला शख्स और उस पर फजल हो रहा है, खूबसूरत था, लेकिन थैंक गिविंग करता है। शुक्रगुजारी का रवैया ना अपनाने वालों की हालत भी सुने। जिनको कुछ मिल जाता है ना, जिनके घर में 70 नवी आई है तो उन्होंने कहने ना बाजी मुबारक हुई 70 गड्डी घर आई तो ना ही पता क्या भाई जी मेरी तो यहाँ 125 ते नजर सी है तेरे भरा दी नजर सी 70 तेरे भरा दी नजर सी 70 मेरी तो नजर 125 ते सी बारी साहब 1,80,000 दी 2.5 लाख दी ते बारी साहब मैं दिलों राजी नहीं है। अच्छा नाल ही मैनू कहता ना मैं दिलों राजी नहीं, मैं नहीं कहना फिर ठीक है चल मैं भी दिल मुबारकबादी देता ना। शुक्रगुजारी का रवैया, ना शुक्रगुजारी का रवैया। खुदा की शुक्रगुजारी नहीं की कि खुदावंद तूने हमें गाड़ी दी है, हमें गाड़ी दी, इसकी शुक्रगुजारी तो करें। फिर सेकंड स्टेप, थर्ड, फोर्थ, पर वो कहता है, खुदा का बंदा पौलुस रसूल कहता है मैं अपने खुदा के फजल का शुक्रिया अदा करता हूं। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, पिछले जुमेरात मैंने कलाम दिया कि यीशु मसीह हमारा सरदार कायन अपने बाप के दाहिने हाथ में बैठा है। आज हमें डर नहीं है, फिक्र नहीं है कि हमें क्या क्या कुर्बानियां देकर, खून की कुर्बानियां, जानवरों की कुर्बानियां देकर हमें फजल के तक के पास जाने की जरूरत है। ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारा बड़ा सरदार कायन खुदा के फजल के तक के सामने खड़ा है। और आज मैं और आप बड़ी दिलेरी के साथ खुदा के तक के सामने खड़े हो जाते हैं। फजल का तख्त जो है, इसके लिए अगर कोई बहन आती तो उसके हाथ में बेटा होता या बेटी होती तो इतने दिन तक वो खुदा के तक के सामने आ नहीं सकती थी, वो वर्शिप नहीं कर सकती थी, वो चर्च नहीं आ सकती थी। कोई मुर्दा को किसी को छू ले तो कई दिनों तक नपाक, उसके कपड़े नपाक, उसकी चारपाई नपाक, कोई बर्तन नपाक चीज छू लेते तो कई दिन तक बर्तन नपाक होते। लेकिन आज हम खुदा के बेटे यीशु के शुक्रगुजार हैं, जो सरदार कायन है, वो बाप के दाहिने हाथ में बैठा है। आज हमें किसी चीज का डर नहीं है। आज पूरी दुनिया आजाद हो चुकी है। यकीन करें, कहीं किसी के घर में कोई मर जाए तो यकीन करें होंगे कई बच्चों को, फैमिली को देखा से प्यार होता है, वो उसके मुंह के साथ मुंह लगा कर रोते रहते हैं, कभी उसके हाथों को पकड़ते हैं, कभी उसके पाँव को, कभी कपड़ों को। आज मैं आपको बताऊं, ये शरीयत अगर मूसा वाली होती तो आपके घर के अंदर से किसी ने कोई खाना पीना नहीं था 7, 8, 10 दिन तक, कोई किसी को छू नहीं सकता था, इतनी नापाकी। लेकिन यीशु का शुक्रिया, पाक बने यीशु की हमदो, वो सरदार कायन का शुक्रिया अदा करें। आज हम फजल के दौर के अंदर हैं, हमें कोई डर नहीं है। और आज पौलुस रसूल कहता है ये फजल हुआ है, ये फजल हुआ है आप सबके ऊपर। और फजल खुदा की वो कुदरत है जिसके आप हकदार नहीं है। और इस जगह पर आके बैठ गए। दाऊद का रवैया ये था कि वो शुक्रगुजारी करने वाला था। आज हमारे कामों में शुक्रगुजारी नहीं है, छोटी सी छोटी चीज में भी शुक्रगुजारी नहीं है। घर के अंदर कोई चीज आई है, शुक्रगुजारी नहीं है। घर बनाया, शुक्रगुजारी नहीं है। घर के अंदर बच्चा आया, शुक्रगुजारी नहीं है। घर के अंदर कोई भी चीज आई है, शुक्रगुजारी नहीं है। आपने अपने मकबे के ऊपर बैठकर शुक्रगुजारी करनी है और कहना है खुदावंद तेरा शुक्रिया। और आज पौलुस रसूल कुरिन्थस की कलीसिया के अंदर खड़े होकर कहता है
ये खुदा का फजल मेरे पर हुआ है कि आज मैं उसके हजूर खड़ा हूं। फजल मैंने बताया खुदा की वो कुदरत है जिसके हम हकदार हैं। एक बंदा 5 क्लास पढ़ा है और एक बंदा MA पढ़ा है, और अगर उसको जॉब मिल गई है तो उसके ऊपर फजल है, वो शुक्रगुजारी करने वाला शख्स है। और जो बंदा इस ओहदे के लिए आला एजुकेशन है, उसने शुक्रगुजारी नहीं की हुई, उसके पास एक तालीम तो है लेकिन उसके ऊपर फजल नहीं है, ग्रेस नहीं है। और आज कई लोगों के ऊपर ग्रेस नहीं है, आज लोगों के ऊपर फजल नहीं है, और जिनके ऊपर फजल होता है उनके लिए राहें खुलती चली जाती हैं, उनके ऊपर राहें बनती जाती हैं। और फजल खुदा की वो कुदरत है। फजल खुदा की कुदरत है। दाऊद खुदा का बंदा, जब शमूएल उसके पास आया तो उसने उसकी अपनी कुप्पी में से तेल निकाला और उसको जब खुदा ने दाऊद को बताया, और ये खा आया भेड़ बकरियां चराने वाला शख्स, इसकी कामयाबी का राज, इसकी तरक्की का राज, आज इसकी स्टोरी तब्दील होने जा रही है। आज इसके ऊपर फजल है। इसके 3 भाई हैं, ये साउल बादशाह का जर्नैल, सिपा सलार, इलियाब, सिमा, ये तीनों पढ़े लिखे लोग, लेकिन दाऊद खुदा का बंदा, कम पढ़ा लिखा, लेकिन इसके ऊपर फजल हुआ है। ये शुक्रगुजारी का रवैया रखता है। ये हर वक्त जंगी लोग हैं, साउल के पीछे रहने वाले। जब शमूएल उनके घर के अंदर गया, इसे देखा तो कहने लगा खुदावंद बड़े जबरदस्त लोग हैं। खुदा ने कहा तू ज़ाहिरी देख रहा है पर मैं बातन को देखता हूँ। पर ये शख्स दाऊद, थैंक यू वेरी मच, बातन के अंदर बैठकर अपने बातन के अंदर खुदा से प्यार करने वाला, उनके पास आला तालीम है, उनके पास आला ओहदा है, लेकिन ये बंदा भेड़ बकरियां चराने वाला शख्स, ये शख्स भेड़ बकरियां चराने वाला, लेकिन इसके ऊपर फजल ये हुआ। फजल ये है कि जिस चीज का ये हकदार नहीं, हकदार तो उसका बेटा इलियाब था, लेकिन यसी का, लेकिन हकदार ये है। बन क्यों गया? क्योंकि ये थैंक गिविंग करता है। और कलाम के अंदर लिखा है जब दाऊद ने इसे मसा किया और इसे कहा तू इस्राएल का बादशाह होगा, ये सर के ऊपर उसने ताज रखा, ये बादशाह बन गया। ये कुर्सी इसकी नहीं थी, ये कुर्सी किसी और शख्स की थी, ये तख्त किसी और का था, ये तख्त इलियाब का था। इसके बड़े भाई का हक था कि वो बादशाह बने, लेकिन क्या उसने अपनी जिंदगी के अंदर शुक्रगुजारी का रवैया नहीं। लेकिन ये भेड़ बकरियां चराने वाला शख्स वर्शिप भी करता है, खुदा के नाम को भी जला देता है। और जब ये बादशाह बन गया, जब ये इस्राएल का बादशाह बन गया और ये अपने तख्त से उठा और खुदा के हुजूर दिन में 7 दफा शुक्रगुजारी करने का ये फर्ज था, क्योंकि इसके ऊपर फजल हुआ था। खुदा को यही बात पसंद आई, दाऊद की ये बात पसंद आई। और कौन? पौलुस रसूल कहता है मैं भी हकदार नहीं था, मैं भी शागिर्द बनने के लायक नहीं था, मैं तो मसीहों को सताता था, मैं तो कलीसिया को सताता था, लेकिन मेरे पे फजल हुआ। दाऊद कहता है मेरे पर फजल हुआ। जितना किसी के ऊपर फजल होता है वो उतनी मोहब्बत खुदा के साथ दिखाता है। जितना किसी के ऊपर फजल होता है वो उतना ही खुदा के साथ मोहब्बत दिखाता है। और खुदा का बंदा दाऊद के ऊपर फजल हुआ। ये जो हर वक्त बकरियों के पीछे टिक 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 और बकरियों को ठाता था, जानवरों को ठाता था, और आज खुदा ने इसके ऊपर फजल ये किया है कि खुदा ने उसे इस्राएल का बादशाह बनाकर ये व्हाइट रंग का सोफा दे दिया। शुक्रगुजारी का रवैया यह है कि आपको नई चीज मिलती है जो आप किसी के हकदार नहीं है। लोग कहेंगे आए पास कि मैं बैठा हूँ, मैं बैठी हूँ, मैं चमन आइसक्रीम जाके आइसक्रीम खानी। कभी साइकिल पे बैठ के ऊपर बुड़बुड़ाते रहे, कभी साइकिल लिए तो कभी ये नहीं कहा खुदा तेरा शुक्र, पाक रुल्क तेरा शुक्रिया साइकिल नहीं।
पाक करुल कुदस तेरी हमद साइकिल के लिए, पाक करुल कुदस मोटरसाइकिल के लिए तेरा शुक्रिया, पाक करुल कुदस इस रक्षक के लिए तेरा शुक्रिया। शुक्रगुजारी आपकी तरक्की को खोलती है। जिस तरह एक मकनातीस लोहे को अपनी तरफ खींचता है और ये शख्स जानता है, दाऊद खुदा का बंदा जानता है शुक्रगुजारी क्या करती है, शुक्रगुजारी चीजों को खींचती है। और इसने क्या किया, दिन में 7 दफा मजलिस या लोगों को बुलाकर अपने इर्द गिर्द नहीं बैठाया, बल्कि ये बंदा उठता है और अपने मतबा के ऊपर जाकर कहता है शुक्रगुजारी के लिए अपने होठों को खोलता है। और ये कोई जानवर बकरे छतरे नहीं लेके जा रहा, बल्कि खुदा के हजूर कहता है खुदावन मैं अपने होठों से तेरे हजूर 100 दिनी कुर्बानियां चलाऊंगा। और ये गीत भी गाता है और खुदा के हजूर 100 दिनी कुर्बानियां भी चलाता है, अपने होठों को खोलकर खुदा की शुक्रगुजारी करता है। और दाऊद की पहली दुआ वो कहता है खुदावन ऐ मेरे बाप यहोवा खुदा मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूं, तूने मुझे घूरे से उठाकर मुझे बुलंदियों पर बिठा दिया, मैं तेरा शुक्रिया अदा करता हूं, मैं तेरी हम्द करता हूं, मैं तेरी तारीफ करता हूं, मैं तेरी सताइश करता हूं। ऐ मेरे बनाने वाले खुदा मेरे पर फजल तूने किया है, मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूं, मैं इस तख्त का हकदार नहीं हूं, मैं इस तख्त का हकदार नहीं हूं। इसने 2 दफा शुक्रगुजारी की, तीसरी दफा खुदा ने कहा उठ, इस वक्त से पहले मैं तुझे ट्रेनिंग दूं। वो साउल के घर चले गया, साउल के घर में जाकर, साउल बादशाह था और उसे पूरी रूह तंग करती थी, क्योंकि वो बादशाह बना, वो दंगे करता रहा, लेकिन कभी उसने मतबे के ऊपर बैठकर शुक्रगुजारी नहीं की थी। वो अपने बाप के गदे ढूंढने आया, लेकिन उसने अपनी जिंदगी के अंदर शुक्रगुजारी का रवैया नहीं रखा शाऊल ने, लेकिन दाऊद ने रखा। खुदा ने कहा चल पहले मैं तेरी ट्रेनिंग करता हूं, तू अपने आप को सासे कम तरीका शिकार ना बना, तेरे पर फजल हुआ है, तेरे ऊपर रहमत हुई है, तेरे ऊपर मेरी कुदरत आई है। आज लोगों की जिंदगी में खुदा की कुदरत नहीं है, आज लोगों के ऊपर फजल नहीं है, वैसे ही कह देंगे नहीं की हाल भैना ते की हाल भरा जी बड़ा फजल है, बड़ा फजल है, क्या फजल है जी, क्या जी बड़ा, क्या बड़ा फजल है, लेकिन फजल होता नहीं है, झूठ बोलते हैं। खुदा सबको देता है, मैं आज आपको बताऊं सबको देता है, किसी को कोई चीज से मोहताज नहीं करता, लेकिन क्या है आपको जब देता है तो आप साउल की तरह उससे अपना रवैया चेंज कर लेते हो, अपना रवैया चेंज कर लेते हो। जब खुदा आपको देता है तो देकर चेक करता है कि क्या ये शख्स या ये बेटी मेरी शुक्रगुजारी को बुलंद करेगी। लेकिन साउल ने क्या किया, शुक्रगुजारी को बुलंद ना किया, जंगे करता रहा, लड़ता रहा। लेकिन दाऊद ऐसा नहीं था, पर दाऊद ने क्या किया, उठकर खुदा के हुजूर जब वो बादशाह बना तो दिन में 7 दफा शुक्रगुजारी कर भैया, और इस पे फजल होता ही गया। फजल ये है, ये एक दरिया है, फजल एक चश्मा है, ये होता ही रहता है। जिनके ऊपर फजल होता है एक से बढ़कर दूसरी चीज, और मैंने देखा है ये फजल रुक भी जाता है, ये चश्मा रुक भी जाता है। दाऊद से सीखता है पलूस रसूल, वो अपने ऊपर फजल को रखते हुए वो कहता है कि मैं रुका नहीं, मैंने गवाही दी, जाकर लोगों के अंदर मेरे पर जो फजल हुआ है, खुदा की कुदरत मेरे पर जो बसी है, मैं रुका नहीं हूं। आज मैं आपको बताऊं, लोगों के अंदर जो बरकतें हैं वो रुक जाती हैं, दरिया बहते हुए रुक जाते हैं, दरिया बहते हुए रुख और तरफ मोड़ देते हैं, मुड़ जाते हैं। वजह यह है कि पलूस रसूल के अंदर खुदा की 9 रूह की नेमतें थी। कितनी नेमतें थी? और सब की शुक्रगुजारी करता था, कहता था खुदा गैर ज़बान के लिए तेरा शुक्रिया,
गैर ज़बान के लिए तेरी हमद हो, गैर ज़बान के लिए तेरी तारीफ हो जो तूने मुझे दी है, मोहब्बत के लिए तेरा शुक्रिया। मेरे अंदर कड़वा बीज था, तूने कड़वे बीज को निकाल कर अपना बीज लगाया है, मैं तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं उसकी शुक्रगुजारी की अगली दफा बातें करूंगा, लेकिन आज उसने सीखा दाऊद से कि फजल क्या है। फजल ये है कि ये बंदा भुजे बह के जगह ते जमीन ते बह के परत कपड़ा सुट के रोटी खाता सी, ठंडी ठंडा ही सालन ठंडी रोटी, क्योंकि चरवाहा था। किथे बाहर अम्मी ताजा रोटी पे किथे चीज, लेकिन आज उसके ऊपर फजल हुआ है। जी करता है, नौकर आके खड़े थे, मालिक क्या चाहिए? कहता जाम लेके आओ। कहता किसका? कहता स्ट्रॉबेरी का लेके आओ। कहता जाम लेके आओ। शाम को कहता ये चीज लेके आओ, ये चीज। लेकिन फजल हुआ, लेकिन हर चीज पकड़कर शुक्रगुजारी करता है। कहता खुदावंद तेरा शुक्रिया इस फजल के लिए, इस फजल के लिए तेरी हमद हो, इस फजल के लिए तेरी तारीफ हो, इस फजल के लिए तेरी सिताइश हो। और इसीलिए खुदा दाऊद की बाबत कहता है, मेरा बंदा दाऊद मेरे दिल के माफिक मिल गया। बुड़बुड़ाना आपकी तरक्की को रोक लेता है। और बनी इस्राइल कौम ने 40 साल तक खुदा बियाबान के अंदर मन खराता रहा, खुदा बियाबान के अंदर उन्हें बटे खिलाता रहा, और खुदा अपने लोगों को फरिश्तों की खुराक देता रहा। लेकिन बनी इस्राइल जो थी वो बुड़बुड़ाती थी, शुक्रगुजारी का रवैया उनकी जिंदगी के अंदर नहीं था। और खुदा ने 40 दिन का सफर 40 साल में कर दिया। आज बहुत से लोग हैं जो इस चर्च के अंदर हैं या कलीसिया के अंदर हैं, मसीह लोग हैं, और उनकी जिंदगी में बुड़बुड़ाना है। उनका सफर 10 दिन का सफर जो है वो 6 साल में हो जाता है। जो चीज 7 दिन में मिलनी थी वो 6 साल में मिलती है। वजह यह है कि वो बुड़बुड़ाते हैं। और आज दाऊद को देखो, दाऊद अपनी जिंदगी में कितना शुक्रगुजारी का रवैया अपनाता है। आज बहुत सी बेटियां शुक्रगुजारी के रवैये को छोड़ चुकी हैं, शुक्रगुजारी के रवैये को तर्क कर चुकी हैं। उठ, दाऊद की जिंदगी के देख, पलूस रसूल कहता है मेरे पे भी फजल हुआ है। मेरे फजल नहीं कि मुझे खुदा ने किस तरह मेरी बुलाहट, अगर पलूस रसूल दमिश्क की राह पर बुलाया गया तो मुझे भी उसने बुलाया। कहां पर? हम गुड़िये बनाने वाले, कहां पर? ये पर यहाँ आज देख मेरे ऊपर ये फजल हुआ है कि आज मैं उसकी कुदरत के चश्मे के अंदर बह रहा हूं, मेरे ऊपर उसका चश्मा है। और मैं क्या करूं? क्या आज भी बुड़बुड़ाऊं? आज भी मेरी जिंदगी के अंदर बुड़बुड़ाना है? नहीं, बल्कि मुझे अपने मजबे के ऊपर जाकर ये कहना है, खुदावंद तेरा शुक्रिया, तेरी हमद हो, तेरी तारीफ हो, तेरी सिताइश हो, तेरी बड़ाई हो। खुदा ने हर रोज मुझे सरफराज किया। सरफराजी लोग अमेरिका देख रहे हैं, अफ्रीका देख रहे हैं, कनाडा देख रहे हैं, बांग्लादेश देख रहे हैं। सरफराजी ना मशरिक से है, ना मगरिब से है, ना शिमाल से, ना जनूब से है। सरफराजी आपकी जिंदगी के अंदर है, इस दिल के अंदर है। ये दिल आपका किस तरह शुक्रगुजारी करता है। कई बंदे बैठ जाएंगे ना, भाई दुआ करिए, यार दिल ही नहीं करता, यार दिल बुझा बुझा है, बुझा बुझा है, अब भाई दिल नहीं करता। अच्छा यार जल्दी करी, फिर दिल बुझे है तो फिर दिल भी बुझे है तो फिर भाई जिंदगी भी बुझी है, बटवा भी बुझे आई, बटवा भी बुझे आई, सब कुछ बुझे आई। जो दिल से फसल को जान जाते हैं, फसल खुदा की वो कुदरत है जिसके कोई इस जगह पर बैठने का हकदार नहीं, लेकिन उसे मिल जाए, उसे मिल जाए तो वो कहता है अरे कारवैया आपको बुलंदियों पर लेके जाता है, और बुड़बुड़ाना आपके ऊपर से ग्रेस को खत्म कर देता है और आपके सफर को लंबा कर देता है। जो लोग बुड़बुड़ाते रहते हैं और उनके घरों के अंदर शुक्रगुजारी नहीं होती, उनके घरों के अंदर हर वक्त बुड़बुड़ाना, छोटी छोटी बातों पर बुड़बुड़ाना, खुदा की दी हुई नेमतों के ऊपर बुड़बुड़ाना,
آپ کے سفر کو لمبا کر دیتا ہے، آپ کے سفر کو آگے بڑھا دیتا ہے۔ آج اس بات کو یاد رکھیں، یہ آپ کے اوپر فضل ہوا ہے، اور فضل خدا کی وہ قدرت ہے، بہتا ہوا چشمہ، اسے روکنا نہیں۔ اگر ایک برکت ملی ہے اس کے بعد دوسری، پھر تیسری، پھر چوتھی برکت ملتی ہے، لیکن آپ کی منہ کے بول جو ہیں بہتے ہوئے چشمے کو روک دیتا ہے۔ آج اس گریس کو اپنی لائف میں میں اسی لیے گاتا ہوں، ورشپ کرتا ہوں، میرے پر فضل ہوا ہے۔ مجھے بڑے لوگ کہتے ہیں بھائی جی گیت، میں کہتا ہوں بھائی گاؤں گا، مجھے موقع ملے میں گاؤں گا، مجھے دعا کا موقع ملے میں کروں گا، کیونکہ مجھے پتا کہ میرے پر فضل ہوا ہے، خدا نے میرے پر رحم کیا، مجھے کھلے سے اٹھا کر بلندیوں پر کھڑا کیا۔ اب خدا قدرت والا ہے، جو کوئی بھی اس کی شکر گزاری کرے گا، جو کوئی بھی اس کے اپنے کاموں کے اندر شکر گزاری کا رویہ اپنائے گا، وہ بڑھتا چلا جائے گا۔ اور کلام کے اندر لکھا ہے، زکریا کی کتاب میں لکھا ہے، یروشلم کے اندر میں مناجات کی روح کو ڈالوں گا آپ کے اندر، مناجات کی۔ اور کئی لوگوں کے اندر یہ مناجات کی روح نہیں ہے۔ کیا نہیں ہے بھائی؟ مناجات کی، اس کے بولتے ہیں شکر گزاری کی روح نہیں۔ کہتا ہے میں تمہارے باتوں میں مناجات کی روح ڈالوں گا۔ تو مناجات کی روح جو ڈال کر اپنی زندگی میں لیتے ہیں، آپ بیمار بھی ہو جائیں تو کہیں شکریہ خداوند، اگر آپ کو تکلیف بھی ہے تو کہیں خداوند تیری حمد ہو۔ اب ابلیس کے لیے دروازہ بند کر دے، جب آپ بار بار چلاتے ہو خدا کے سامنے تو یہ نہیں بلکہ پنوز کو سنے، وہ اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر کہتا ہے میں اپنے باپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور وہ کلیسیا کی طرح کہتا ہے ہر وقت مزامیر، زبور اور غزلیں گاتے رہو۔ کیا گاتے رہو؟ ہر وقت شکر گزاری کا رویہ آپ کے منہ پر رہنا چاہیے۔ کھسرے گاؤ، زبور گاؤ، گیت گاؤ، اور شکر گزاری اپنی چیزوں کی۔ فرج لی ہے تو کہو خدا تیرا شکریہ، تیری حمد ہو، تیری تعریف ہو، تیری ستائش ہو، تیری بڑائی ہو اس فرج کے لیے۔ گاڑی لی ہے خداوند تیرا شکریہ، سوٹ لیا ہے تیرا شکریہ، جوتی لی ہے تیرا شکریہ، تیری حمد ہو، تیری تعریف ہو، تیری ستائش ہو، تو نے میرے لیے دروازہ کھولا، تو نے میرے لیے ڈور کھولا، میں تیرا شکریہ ادا کرتی ہوں، میں تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور خداوند میں تیری حمد کرتا ہوں، تو نے مجھے پاکیزگی اور راست بازی کا لباس دیا، میں تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اے خداوند تیرا شکریہ، اے پاک روح القدس تیرا شکریہ، اے پاک روح القدس تیری حمد ہو۔ کوئی آپ کو لفٹ دے گاڑی پر، اپنے بندے، اپنے جاننے والے کے ساتھ بیٹھنا، اجنبی کے ساتھ نہیں بیٹھنا کسی۔ میں آپ کو بتاؤں کبھی بھی کوئی لفٹ دے اجنبی کے ساتھ تو بیٹھنی، اپنے لوگوں کو، اپنے چرچ کے لوگوں کے ساتھ جسے آپ جانتے ہو، جب بیٹھو تو اسے کہیں خداوند اس ڈیوائن ہیلپر کے لیے تیرا شکریہ، اے باپ اس سواری کے لیے تیری حمد ہو، اس سواری کے لیے تیری تعریف ہو جو تو نے میرے لیے کی۔ شکر گزاری کا رویہ، اور آپ کے اندر کیا ہے؟ مناجات کی روح ہے۔ کیا ہے یہ کیا ہے؟ مناجات کی۔ تو فوری پتہ چل جائے گا اس کے اندر کون سی روح ہے، بڑبڑانے کی روح یا مناجات کی روح۔ بڑبڑانے والی روح جو ہے وہ آپ کے سفر کو لمبا کرے گی، اور شکر گزاری کی روح جو ہے وہ آپ کو بلندیوں پر لے کے جائے گی۔ اور داؤد شکر گزاری کرتا رہا، اور لکھا ہے جب وہ آخر میں بوڑھا ہو گیا تو خدا کے دور شکر گزاری کرنے والا، اور خواب میں کہتا ہے، خدا کو کہتا ہے ایک دن بیٹھا ہوا، میں تو محلوں میں رہتا ہوں، میں تو وائٹ رنگ کے تخت کے اوپر بیٹھ کر لوگوں کا انصاف اور جنگیں لڑتا ہوں، پر اے خداوند تیرا عہد کا صندوق تو باہر رہتا ہے،
कहने लगा तूने आज सोचा है तो क्या चाहता है? दाऊद कहता मैं चाहता हूँ मैं तेरे लिए एक आला घर बनाऊं जहां पर तू रहे। तो खुदा ने कहा तू जंगी मर्द है, तेरे हाथ खून मुद्दा है, तू शुक्रगुजारी करने वाला शख्स है, पर मैं तेरे सुन से एक बेटा पैदा करूंगा और वो मेरे लिए आला घर बनाएगा। और लिखा दाऊद ने जब ये सुना तो शुक्रगुजारी का रवैया देखे, पहले शुक्रगुजारी होठों से करता है और फिर जब उसे पता चला कि मुझे मेरा बेटा खुदा का घर बनाएगा तो उसे खुदा के घर की लो लगी और फिर उसने अपने दरवाजे खोल दिए, डोर खोल दिए यकी के हदियों के शुक्रगुजारियों के, और वो खोलता चला गया। और फिर एक दिन कहता है मुझे खुदा के घर की लो लगी, तो कहता है जरेब मेरे लिए पसंदीदा जगहों में पड़ी यार मेरी मरास है। क्या मतलब है? जब इन्नान फरियाद इन्ना कुछ दे देता तो फिर कहता है मेरा दिल इस जमीन पे नहीं, बाइबल में लिखा जहां तेरा माल है वहां तेरा। तो फिर क्या कहता है? इतनी दाऊद कोई आम आदमी नहीं था, मैं आज आपको बताऊं खुदा का फेवरेट हीरो, खुदा का फेवरेट बंदा, और परूस इसी को फॉलो करता है। कहता है अगर उस पर फजल हुआ है तो फजल मेरे पे भी हम अपनी जिंदगी में लेंगे इसको, हम अपनी। और कौन जो अपने मजबे पे जाके 3 दफा दुआ करेगा, 3 दफा दिन में, और करनी सिर्फ शुक्रगुजारी है। जो हूँ सो हूँ बलवान कहलाता हूँ, मेरा बलवान कहलाता हूँ, मेरा बलवान कहलाता हूँ, मैं हूँ सो हूँ बलवाता हूँ, मेरा बलवान कहलाता हूँ, मेरा बलवान कहलाता हूँ, मेरा बलवान कहलाता हूँ,
बोले आमीन। खुदा की शराबती आप सब पर हो।